Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, Vita. Good morning. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मैम जो अभी साइंस क्विज होने वाला है सीवी रमन के बारे में, मैम उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए? डे है, वो साइंस डे है। सीवी रमन के बारे में करके कौन बोला? यस मैम। मैम उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है ना उस दिन। हाँ, 28 को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है एंड दैट्स व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड एज साइंस डे। ओके, तो क्विज जो है वो शायद आपका रामन की जस्ट वन सेकंड, एक सेकंड। प्रिंस की क्लास जहाँ होगी वहां गए होंगे। Okay. Good morning, all of you. Rest. Okay. So let's start our class. And today, as I said, that today we will be taking the revision for the for subjectives only. Okay. And if the time is left, then we will revise for the MCQs also. Okay. Is it clear? So let's start our. कौन से चैप्टर का? Yes, yes. Which chapter? All the 3 chapters. Chemical effects of electric current बहुत बार हो चुका है, PT2 में भी हो चुका है, इसलिए I am not revising that now chapter. I am directly taking the revision. Okay, and today we will deal with the subjective portion. Subjective portion मतलब पूरा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और टाइम बचता है तो फिर फिलअप्स वगैरह भी, फिलअप्स वन वर्ड वगैरह भी देख लेंगे. ओके, ठीक है. So let's start. And when I am asking the question, I don't want you people to sit quietly. अगर आप quietly बैठ रहे हो, तो I will remove you from the class. If you don't know the answer, simply tell don't know. उसमें कौन सी बड़ी बात है? But if you are sitting mum, I will remove you from the class. The screen is visible to everybody. Yes, ma'am. So I will be asking one by one. Okay. Yashita. Yes, ma'am. Question number 1. Ma'am, neutralization means that when we add acid and base together, the reaction is called neutralization. Ma'am, one example of neutralization reaction is when we add hydrochloric acid to Yes, correct. one second, let me think. Yes, hydrochloric acid to sodium hydroxide. Sodium hydroxide, yes. Yes, hydrochloric acid to sodium hydroxide, what it will form? It will form hydrogen. No. It will form salt and water. Salt and water. आप उसमें बनेगा आपका सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. ओके, सो देखिए एग्जांपल में आप सबसे कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. चाहे तो आपको फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला लिख लिए, नहीं आता तो सिंपल वर्ड फॉर्म में लिख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड will give sodium chloride and water. This way you will write. Okay, is it clear? So this is the equation how you are going to write if it is asked in the exam.
So this way you have to do. The first question is clear to you. Neutralization reaction एक ऐसा reaction है जिसमें acid और base react करके salt and water देते हैं. जैसे कि हमने क्या एग्जांपल लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का. जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करते हो तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज फॉर्म. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Rishabh, I am giving you the okay, good. Vineet, Vineet, Vineet. What I told that when I am asking you the question, then you have to reply. So you don't have to sit mum. Isn't that Vineet? मैम may I? Wait, beta. Let me tell. मैं आपको सब में. Wait, I know that most of you know the answers, but when I am asking the question, I expect that the person whom I am asking is responding to me. Vineet, and last time I am telling to you, either you tell yes or no, or response to me, give a response to me, or I will remove you from the class. 2 minutes I will wait, not more than that. Adi, which formulas you want? Vedant? Yes, ma'am. Question number 2 verbally. आप लिखा रहे थे हाँ? मैम, जो एक दिन आप वाइट पेज में कुछ लिखवा रहे थे ना, हाँ. वो वाला. मैम, that day my network problem was there. Okay. I will tell. Wait, huh? Vedant, tell the question number 2. Question number 2. What, ma'am? Question number 2, you answer. What are indicators? Yes. Yes, Vedant. Yes, ma'am. 2 minutes. I will give the chance to everyone. 21 questions I have prepared from all the chapters. You will get the chance. Vedant, are you able to answer or not? I will give the chance to other person. No, ma'am. Then tell. Ma'am, please may I? I'm not able to answer this question. Okay. Who raised the hand? Let me check. Okay, Divyansh. Yes, ma'am. Ma'am, basically inductors are the substance which indicates acid, base, and neutrals. They started their progress with the help of hydrogen present in the substance. Okay. They indicate them. Indicators are the chemicals which are used to determine whether the given substance is acidic or basic or neutral. Okay. Indicators are the substances which are used to determine whether the given substance is acidic, basic or neutral. Okay. अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे ले जा रही हूँ. Okay. अच्छा, इंडिकेटर नहीं पढ़ाया एसिड बेस में पार्श? मैम पढ़ायो. फिर मैम, पढ़ायो. इंडिकेटर्स भी पढ़ाया है मैंने, एसिड बेस भी आपको बता दिया था, बोला भी था कि इसके फॉर्मूलास याद रखना. ओके. और तो एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स जो है वो सब्सटेंस होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं विच हेल्प टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. ओके. इफ आई एम एक्सपैंडिंग दिस क्वेश्चन, कैन यू क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स? आपने जो इंडिकेटर्स, यस, how many of you can classify? Yes, can I see the name?
Okay, Parsh, Chetna, Divyansh. Same 3 hands. Okay. Chetna, Ma'am, may I tell? wait, I will tell, beta. Yes, ma'am. I will give the chance. turmeric, litmus paper, ओके, टर्मरिक है, लिटमस है, फिनोप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज, चाइना रोज, सब है। तो आप मुझे बताइए इनको कैसे कैटेगरी में मैं डिवाइड कर सकती हूँ? कैसे कैटेगरी में? इनको किसी कैटेगरी में रखना होगा। they are natural indicator. यस एंड गुड। Artificial. Ma'am, they can, yeah, if we add acid to them, they change color, and we, कलर if चेंज we add basic, आपने वर्ड से यूज किया, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और बाकी क्या होते हैं? Artificial. सिंथेटिक हम आर्टिफिशियल सिंथेटिक, आर्टिफिशियल नहीं यूज करते, सिंथेटिक वर्ड यूज करते। सिंथेटिक मतलब मैन मेड। ओके, तो देर आर बेसिकली 2 कैटेगरीज ऑफ इंडिकेटर्स इन योर कोर्स दिस ईयर, नेचुरल इंडिकेटर्स, मैन मेड इंडिकेटर्स। ओके, तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस वाले इंडिकेटर है ना, टर्मरिक हो गया, फिर लिटमस हो गया, ये सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर्स है। और बाकी जो बचे हुए जो है, जैसे कि आपका हो गया फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सारे के सारे ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, याद रखना इसको। ओके, जो नेचुरली मिला है वो नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज किसमें आएगा? हाँ, चाइना रोज किसमें आएगा? चाइना रोज नेचुरल है या सिंथेटिक है? नेचुरल क्या चाइना रोज भी नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कैबेज वाला भी नेचुरल इंडिकेटर है, आपका लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है, इवन टर्मरिक आल्सो इज नेचुरल इंडिकेटर, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ओके, एंड पीएच, दीस आर द synthetic indicator. Next, what is the color? No, leave it. Okay. Wait 1 second, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं। जो मम्मी बोले। Okay, what is the substance formed when magnesium is burnt? जब मैग्नीशियम को गर्म किया जाता है तो वो क्या बनाता है? Can anybody tell me? Anybody? It is little bit tough, that's why I am giving the chance to everyone. Yes? Is anybody able to tell? Okay, pass. Ma'am, magnesium oxide. वेरी गुड। मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन कंबशन शो करता है। कंबशन में क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो वो बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, गुड। नेक्स्ट, नाउ हियर केम द मेन थिंग व्हिच आई आस्क्ड, नेम 3 बेसेस। तो 3 मैंने चीज क्या पूछा? नेम 3 बेसेस एंड एसिड्स। तो पहले आप लोग 3 बेस बताओगे, देन यू विल टेल द 3 एसिड। ओके, सो लेट मी, जिसको आंसर आता है वो अपना चैट पे लिख के भेज सकता है प्राइवेटली, अदर्स आई विल बी आस्किंग हियर। ओके, नाउ who is that? Navya is not there. Vanshika, yes, Vanshika, she has left forward. Vanshika, Vineet, Yes, ma'am. now you are replying. At that time what happened? You not replied to me. Ma'am, the option is not coming to me. Okay, give 3 examples. 3 Yeah. We don't need option to tell. You have already given. name 3 acids and their formula. Okay, Divyansh, your one thing is correct. It is acid or base, how I will get to know? Okay, name 3 Ma'am, base. with their formula. मैंने आपको सिंपल एसिड्स बताए थे, सिंपल बेस बताए थे। आपको सिट्रिक एसिड वगैरह के फॉर्मूलास बड़े बड़े होते हैं, तो आपको मैं उसका एग्जांपल तो लिखते नहीं बोलूंगी। मैंने क्या बोला है क्वेश्चन में? देखो, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? नेम 3 एसिड एंड बेसेस यूज्ड इन द laboratory and you with their formula. Okay, Sanskar, good. Yashita, good. One example I got. Yes, who is this? Divya, good. Yes, Divya, correct है बेटा। Okay,
Yes, Vineet, I am asking you something. Why you are not replying till now? Yes, Divyansh, correct hai. Yashita also correct. What about? Yes, Vineet. Very good, Pash. Very good. It is correct. Very good. Yes. Okay, now let's see. मैंने आपको बोला HCl, hydrochloric acid. मैं I am telling the name and I am just writing the formula. So first is hydrochloric acid. Okay, it is called as hydrochloric acid. Then next is H2SO4. Sulfuric acid. H2SO4. It is H2SO4. Then it is called as sulfuric acid. Then HNO3. Nitric acid. Okay, this nitric acid. Okay, then you can also, one more I told you, as if you remember, इसमें से जो आपको याद होता है आप लिख सकते हो। तीन बेसिक, कम से कम तीन तो याद होना ही चाहिए। ओके, एसिटिक एसिड, then H2CO3, this is carbonic acid. ठीक है बेटा, तो ये जो है ये सारे के सारे एसिड्स के एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा। ओके, इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब बेस की बारी आती है। ओके, No, ma'am. यस, बेस नेचुरल एसिड्स के एग्जांपल दो ना। यस यस, किसके? नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड में आपका आ जाता है एसिटिक एसिड, ये नेचुरल एसिड्स है ना। ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, नेचुरल एसिड नहीं बोलते, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो ये एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। फिर आपका HCOOH होता है, HCOOH फॉर्मिक एसिड जिसको बोलते हैं। ठीक है, HCOOH फॉर्मिक एसिड। ओके, तो ये जो फॉर्मिक एसिड है ये भी नेचुरल एसिड है। टार्टरिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है। और आपका क्या है, इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये ना आप लोग बोल रहे हो नेचुरल एसिड्स नहीं होते, हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब बेस की बारी आती है, तो बेस में देख लो सबसे कॉमन बेस जो होता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, देन KOH, ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देन यूर हाइड्रोक्साइड होते हैं मैम, वो सब बेस होते हैं। जितने भी लास्ट में हाइड्रोक्साइड आते हैं वो सब बेस होते हैं। बेसिकली वही होते हैं कि जिन जनरल, अब हम एक जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि बेस क्या होता है, छोटे मतलब, क्योंकि बेस तो बड़े बड़े लेवल पे भी आ जाता है तो अलग टेक्निक है, तो उसमें अगर नहीं जाए सिर्फ इसमें जाए तो आप ये लिख सकते हो। बेस को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक जो तरीका होता है ये है कि जो पानी में घुल के हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करे, तो जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है वो बेस है। तो ये सारे के सारे OH वाले हैं, वो सारे के सारे बेस है। इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जांपल भी बताऊंगी जिसमें OH नहीं है लेकिन फिर भी वो बेस है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं। इसको हम लोग याद रखना, इसको लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना इसको, लाइम वाटर। इसको क्या बोलते हैं?
लाइम वाटर और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बोलते हैं। लाइम वाटर इसका कॉमन नेम है, तो कहीं क्वेश्चन में अगर मैं लाइम वाटर वर्ड यूज करूं तो समझ जाना मैं किसकी बात कर रही हूँ। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद आता है आपका Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ओके, ये किसी ने मुझे दिया था अभी चैट में, मुझे याद नहीं किसने दिया था, लेकिन व्हाट समबडी आई गिव मी वेरी गुड। मैंने दिया था। ओके गुड, सोडियम कार्बोनेट, देन सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों में फर्क है। जो Na2CO3 है वो वॉशिंग सोडा है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा, जो घर में खाने के लिए यूज करते हैं ना वो। ओके, सोडियम, NaCl किसमें आएगा? ये सारे के सारे बेस है बेटा। मैम NaCl किसमें आएगा? NaCl सॉल्ट है, वो न्यूट्रल है, वो एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है। ठीक है, मैम यस। अगर गलती से ये फॉर्मूला का जैसे ये ए छोटा है तो वो अगर गलती से बड़ा हो गया तो उसका मार्क्स कट जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूले का नंबर, अगर मैं सिर्फ आपको नाम लिख के बोल रही, सिर्फ ऐसी MCQ वगैरह में दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको मैंने फॉर्मूला का ही नंबर देना, जैसे मैंने अभी क्या बोला, राइट द फॉर्मूला। राइट द फॉर्मूला बोलने से क्या हो जाता है, आपको सिंबल लिखना पड़ेगा। सिंबल आपने गलत लिख दिया तो नंबर तो जाएगा ना जाएगा बेटा। इसलिए देखो मैं कितना ध्यान से यहाँ पे लिख रही हूँ, एक एक का छोटा बड़ा हो रहा तो मैं उसको कर दे रही हूँ। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूलाज ऑफ द सम एसिड एंड बेस। इसमें से कम 3 या 4 आप याद कर लो। ओके, तो मैं अगर एसिड और बेसिस का अगर फॉर्मूला पूछती हूँ तो आप इसमें से ये याद रखो। ठीक है, क्लियर। और अगर आपसे कोई पूछे कि बेकिंग सोडा, ये शायद याद होगा, बेकिंग पाउडर में क्या होता है ये पूछेगा। बेकिंग पाउडर, घर में जो बेकिंग पाउडर यूज करते हैं ना, वो बेकिंग पाउडर का केमिकल कंपोजिशन अगर कोई पूछेगा तो याद रखना कि बेकिंग पाउडर के अंदर रहता है दिस वन, बेकिंग एसिड। बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड रहता है, याद रखना ये है बेकिंग सोडा, NaCO3। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया इतना, इसमें Yes, कोई ma'am. प्रॉब्लम है नहीं? तो अब हम आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज 21 क्वेश्चंस एटलीस्ट वी हैव टू फिनिश टुडे। ओके, सो लेट्स सी आफ्टर क्या है, व्हाट गैस, ये आ गया, which gas is released when baking soda is mixed with vinegar। जब एसिड को विनेगर के साथ मिक्स करो, एसिड विनेगर जो है उसको अगर आप, यस दे गुड। ओके, कलश योर आंसर इज गुड बेटा, आप वो वाला भी एग्जांपल लिख सकते हो बेस में। तो एसिड विनेगर को जब आप बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करोगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा? ओके, करेक्ट है, वेरी गुड। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? नील, कैन यू आंसर मी? नील, Neil, Yes, ma'am. can you answer me which Yes, gas is ma'am. released when baking soda is mixed with vinegar? Salt. गैस बोल बेटा, तो सॉल्ट कहाँ से आएगा? गैस की बात कर रही हूँ ना, कौन सा गैस रिलीज होगा पूछा है मैंने। द गैस रिलीज इज कार्बन डाइऑक्साइड। यस मैम, जो आप वो फॉर्मूला लिखा रहे थे ना, हाँ, उसका जो रुको एक बार देखना है उसको। ओके, मैम 2 मिनट्स का दो। विजिबल? यस मैम, डन। डन ना? यस मैम। ओके, तो गैस जो बेकिंग सोडा या द बेकिंग सोडा को रिएक्शन के साथ, बेकिंग सोडा और विनेगर का जहां हम रिएक्शन करेंगे तो जो गैस रिलीज होता है वो है विनेगर। ओके, क्लियर। बेकिंग सोडा और एसिड का जो, ये विनेगर एक एसिड होता है, और जब हम इसके रिएक्शन कराएंगे तो याद रखना द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। अब बीच मैंने आपको बताया लाइम वाटर क्या है, क्या था लाइम वाटर, व्हाट वाज लाइम वाटर, क्या बताया था मैंने? लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ओके, करेक्ट है। जब हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। जब हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। ओके, क्या हो जाएगा?
मिल्की। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कि जैसे वन वर्ड होता है, वन वर्ड आता है ना आप लोगों को, तो वन वर्ड में अगर मैं पूछूं कि द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो आप क्या लिखोगे? CO2. CO2। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो है ये लाइम वाटर को मिल्की कलर में कर देता है, मिल्की मतलब दूध जैसा सफेद सफेद हो जाता है सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये क्योंकि क्या बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यस, लाइम तो ऑलरेडी व्हाइट होता है। लाइम चूना व्हाइट होता है, चूना चूना व्हाइट होता है, उसका सोल्यूशन बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका आपका जो रहता है वो एकदम क्या बोलते हैं, दूध कैसे दिखता है, जो एकदम गाढ़ा गाढ़ा व्हाइट व्हाइट वैसा दिखाई देगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है बेसिकली आपको प्रेसिपिटेट भी मिलेगा। प्रेसिपिटेट समझते हो क्या बोलेंगे उसको? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस के फॉर्म में नीचे एक सफेद रंग का लेयर परत जम जाएगा। ओके, तो वो जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्यूशन तो मिल्की होगा ही होगा। पहले वो हल्का हल्का व्हाइट दिखता है लाइम वाटर, लेकिन अगर आप इसको CO2 पास करोगे तो एकदम ही ज्यादा दूध कलर का टाइप, दूध के जैसा बन जाएगा। और आपका जो नीचे जो है वो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर भी मिलेगा, एंड दैट इज कॉज्ड बाय दिस पर्टिकुलर CO2 गैस। ओके, लेकिन आपको एक्सेस में नहीं पास करना है, एक्सेस में पास करोगे तो कलरलेस हो जाएगा, आपको लिमिटेड अमाउंट में पास करना है। ये बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपको बहुत सारे गैसेस के बारे में है, एसिड रेन के बारे में है, और क्या बोलते हैं ये लाइम वाटर मिल्की वाला हो गया, पॉपसॉन वाला हो गया। तो ये आपको कौन कौन सा गैस क्या क्या करता है ये आपको याद होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देन आई विल कम, लेट मी कम बैक टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। मेरे को सारे क्वेश्चंस को थोड़ा टच कर लेने दो, बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम हैविंग एनी अदर क्लास इन दिस वीक टुडे, इजंट दैट? नेक्स्ट क्लास अभी एक भी नहीं है ना मेरी, दो ये लास्ट क्लास है इस वीक की, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स यू आर हैविंग एग्जाम, इजंट दैट? नेक्स्ट, व्हाई इज द बर्निंग ऑफ कैंडल कंसिडर्ड अ केमिकल चेंज? बर्निंग ऑफ कैंडल को हम केमिकल चेंज क्यों बोलते हैं? व्हाई वी आर कॉलिंग बर्निंग ऑफ कैंडल एज केमिकल चेंज, ऋषभ? यस, And because it is irreversible. it is irreversible, or yes, a new substance is formed. यस, करेक्ट है, आप ऐसे भी लिख सकते हो जब कैंडल बर्न होता है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, दैट इज करेक्ट। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये मैंने आपसे क्लास में भी पूछा था, मैंने 5 चेंजेस मुझे चाहिए, 5 डिफरेंसेस चाहिए। एनीबॉडी विच हु कैन टेल मी 5, नॉट 1 or 2, 5, only 3 hands, no new hands. Okay, Parsh, okay Parsh, you tell me. Parsh, Yes, tell all the 5 differences, you tell me. yes, ma'am. Ma'am, physical changes are generally reversible. Yes, Chemical changes are generally not reversible. yes, irreversible. Okay, correct hai. Then Ma'am, chemical changes form new substance. yes, Physical changes do not form new substance. very good. Physical change, ma'am, physical change is temporary. Yes, Chemical change is permanent. okay, correct. 2 more. Ma'am, in physical change, very little heat is absorbed or given out. But in chemical change, lot of energy is given out. Okay, yes, Example of physical change, boiling water. Example of chemical change, rusting of iron. ओके, करेक्ट है। तो ये सारे के सारे जो पार्शियल डिफरेंस बताए सारे करेक्ट है। एनर्जी में आप ये लिख सकते हो कि देयर इज चेंज, एनर्जी एक्सचेंज और मे नॉट बी, एनर्जी एक्सचेंज में और मे नॉट बी देयर इन द फिजिकल चेंजेस, बट एनर्जी चेंजेस आर कंपल्सरली देयर इन द केमिकल चेंजेस। ओके, सो ये सारे के सारे आपका जो है ये क्या है, केमिकल, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के डिफरेंसेस है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? ओके, yes, next. No, ma'am. So this is the done. Now next is 1 minute, let me take out the questions from this. Okay, जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक से डिस्कस नहीं किए हैं उसको मैं एक बार कर लेती हूँ, देन आई विल मूव टू दैट।
Question number 16. Are you able to see the question number 16? Yes, ma'am. Okay. Question number 16. Who can tell me? Chetna? Chetna? Question number I 6. can't tell. Ma'am, may I? Yes, wait. Let her tell if she want to tell. Yes, Chetna. I you want can't to tell. tell? Huh? I can't tell. Okay. Ma'am, may I please? Yes, Yashita, tell. Ma'am, because children can get a shock. Okay. Just because if there it is not covered, it is dangerous for the small kids at the home. They will catch what shock. They will get shock. That's why we are facing sellotape or plastic. Sellotape और प्लास्टिक मेन क्या सेलोटेप और प्लास्टिक ही क्यों लगाया क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ओके और नेक्स्ट इट इज यस गेट शॉक और बेटा आपने ये तो बता दिया शॉक लगाया लेकिन आपने प्लास्टिक और सेलोटेप क्यों लगाया है ये भी तो बताना पड़ेगा प्लास्टिक और सेलोटेप की क्यों यूज किया क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ओके नेक्स्ट इट इज next question differentiate between the two types of circuit yes or what circuit kya hota hai and differentiate the two types of circuit what do you understand by circuit electrical circuit and what are the two types of circuits yes anybody Adi can you tell Adi can you tell Yeah, no, ma'am. okay anybody yes only one person in the whole class okay Pash tell me yes Pash tell मैम सर्किट मैम वो होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और मैम एक दूसरा वाला सर्किट होता है क्या मैम जिसमें ब्रांचेस टाइप से कुछ रहता है सीरीज ऑफ सर्किट Ma'am, series and parallel. ओके पहले मैं आपको पहले बता देती हूँ सर्किट क्या होता है सर्किट इज अ सीरीज ऑफ connections of electrical components which leads to the conduction of electricity okay electrical components को जोड़ के जो हम लोग एक सीरीज को तैयार करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है तो वो क्या है सिंपल सा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है ओके ये इलेक्ट्रिकल सर्किट दो टाइप के होते हैं ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट ठीक है ओपन सर्किट मींस व्हाट व्हेन देयर इज अ no flow of electricity open circuit matlab jab switch is in the off position open circuit means when the switch is off no current is flowing to the circuit it is also called as incomplete circuit okay and closed circuit means when the switch is on and the electricity is flowing through the circuit and it is also called as complete circuit okay समझ में आया कि सर्किट क्या होता है और इसके टाइप्स क्या है ठीक है Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस ना बेटा आपको डिफरेंस भी है आपके कोर्स में तो फिजिकल चेंज क्या है केमिकल चेंज क्या है स्पॉन्टेनियस रैपिड एक्सप्लोजन नो यू आर नॉट हैविंग सॉरी कंबशन एंड फ्लेम आपके कोर्स में नहीं है सॉरी तो ये सर्किट वगैरह का डिफरेंस याद रखना वगैरह का ओके फिजिकल चेंजेस वगैरह बैटरी हो क्या होता है सेल क्या होता है उनके बीच का डिफरेंस क्या है एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस क्या है ओके तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे ओके नेक्स्ट इट इज Yes, ma'am. so one more questions let me see okay electromagnets are better than permanent magnets why electromagnets are better than permanent magnets why yes Because ma'am, electromagnet can be switched off and permanent magnet can't. ओके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बेटर है क्योंकि उसमें हम जब चाहे उसकी मैग्नेटिक पावर को कंट्रोल करते हैं बाय सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी और स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके करेक्ट है द मैग्नेट वी कैन कंट्रोल दैट मैग्नेट बाय कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिसिटी okay but we can't do that in that case of permanent magnet okay clear next is
Okay. Acha, what formation of curd is a what? Formation of curd is a physical change or chemical change? Chemical change. Chemical change. Okay. During the formation of curd, energy will be released or absorbed? Ma'am, chemical change. केमिकल चेंज में एनर्जी रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है? रिलीज होती है. रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है? तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब? Excuse me, ma'am. यस यस. मैम कंसेप्ट समझ नहीं आया मैम. रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है वाला. रिलीज होती है मतलब कुछ रिएक्शंस को करने के लिए हमको हीट सफिशिएंट नहीं होता, तो हमको नेचर से जो है व्हाट क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है. ठीक है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ. कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको नेचर से हीट एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं होती, तो वो अपने आप क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी जो रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है. ठीक है, ये कैन यू गिव एन एग्जांपल? यस, जैसे कि हम लोग कोई चीज को गर्म करते हैं. ओके, कोई चीज को हम गर्म करते हैं, जैसे कि अभी हम लाइमस्टोन को लेके आए, गर्म कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो जो सब्सटेंस है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है टूटने के लिए. ठीक है, तो वो क्या हो गया, अपने आप एक हीट एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है. आपकी बॉडी में क्या होता है, आपकी बॉडी में फूड जो है उसको छोड़ दो. ये वाला एग्जांपल समझ में आया कि मैंने कोई चीज को गर्म किया और उसको गर्म करने से, सप्लाई करने से वो टूट रहा है, तो यानी कि वो जो सब्सटेंस है उसको तोड़ने के लिए मैंने क्या किया, बाहर से हीट सप्लाई किया, तब जाके वो टूटा. यानी कि अगर वो कंपाउंड को टूटना है तो वो अपने आप नहीं टूट रहा है, वो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तब वो टूट रहा है. इजंट दैट? तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, और इस पे एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, लेकिन कुछ जो है, कुछ एनर्जी, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने आप टूटते हैं. जैसे आपकी बॉडी में खाना है, ठीक है, आपकी बॉडी का खाना है, वो आपकी बॉडी, आप फूड लेते हो, फूड से क्या प्रोड्यूस होता है, डाइजेशन के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इजंट दैट और नॉट? आप आपकी बॉडी में जाते हो, ऑटोमेटिकली बैक्टीरियल एक्टिविटी चालू होता है, बैक्टीरियल एक्टिविटी चालू होकर खाना डिकम्पोज होता है, फिर खाना से क्या प्रोड्यूस होता है, फूड से क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना. तो एनर्जी रिलीज हो रहा है इस प्रोसेस में. ठीक है, ये एक ऐसा केमिकल चेंज हुआ जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है. समझ में आया ये? यस मैम. आपकी बॉडी में फूड गया, आप डाइजेशन हुआ, डाइजेशन से एनर्जी रिलीज हुई, तो ये एक ऐसा केमिकल चेंज है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, केमिकल चेंज वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके, और अगर सपोज मुझे लाइमस्टोन लेके आना है, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, एक पत्थर है, मार्बल जो बोलते हैं, मार्बल से अगर मुझे चूना बनाना है, मार्बल से अगर मुझे चूना बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, उस मार्बल को गर्म करना पड़ता है, तब जाके उसमें से चूना निकलेगा, है कि नहीं. तो यानी कि ये कैसा केमिकल चेंज हुआ जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. ठीक है, तो केमिकल चेंज में एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है. मैंने आपसे पूछा था कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में एनर्जी रिलीज हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है. तो अगर मैं क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन ओनली, है ना. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जो होता है वो एक टाइप का फर्मेंटेशन ही है. ओके, तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है और एनर्जी रिलीज होता है. तो याद रखना कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के दौरान एनर्जी रिलीज होगा. ओके, इज इट क्लियर, अंडरस्टूड? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने थे. अभी तो मेरी क्लास का टाइम भी हो गया. विद इन 1 minute द बेल विल रिंग, मींस टाइम विल बी ओवर. सो मैं आपको जो अभी बोल रही हूँ कि सर्किट का डिफरेंस, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, एसिड बेस, जो एसिड का फॉर्मूला, बेस का फॉर्मूला, ओके, ये सब याद रखना. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट योर वन मोर थिंग आई विल डू. कहाँ गया? मैम लेस देन 1 minute लेफ्ट. ओके, अगर एंट जो हमें काटता है तो पेन होता है. क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या रिलीज होता है, एसिड रिलीज होता है. तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, We'll put baking soda.